on behalf of BC Bhagalpur, I heartily welcome you, sir, in this discourse, and for this lecture. My students will be motivated to make career in the seismic or earthquake engineering. So first of all, my friends, my students, I would like to introduce Dr. Arun Bapat. Arun Bapat was working as head of earthquake engineering research division at Central Water Power Research Station, Pune, and he was superannuated in the year 1998. Currently, he is working in the field of earthquake engineering predictions with number of states, and he is in the advisory and consultancy work such as Northeastern Council, Shillong, Kerala, Tamil Nadu, Maharashtra, Himachal Pradesh, Delhi, Bihar, Tripura, Delhi, Andaman and Nicobar, Mizoram. All these states are getting advice from Dr. Bapat on earthquake. He is also associated with the neighboring countries such as Nepal, Indonesia, Australia, China, Pakistan, Turkey. All these countries are getting advice from Arun Bapat on earthquake as well as on tsunami problems. During 2005-06, he was seismic consultant to Gujarat government. At present, he is associated with the project for developing a computer tsunami model for Indian coast. And his research contributions are many. He has developed an earthquake catalog, and he is the principal author of the book Catalog of Earthquake in India and neighboring country from 1979. And this book is very popular and in the SAR country also. And he had written number of papers on earthquake and tsunami. And he is also working for the development of new subject of seismosedimentation, and he is expert of a complex phenomena of earthquake, and our state and particularly Bhagalpur is located in seismic zone 4, and in our institutions we are safety clinic for disseminating informations to the user for constructions of houses and other structures, related civil engineering structures. And in this way, BC Bhagalpur is a nodal center, apex center for assimilating informations, disseminating informations, all related with the earthquake. And we shall document each and every literature, research papers on earthquake for disseminations of knowledge to the user end. As for example, you try to understand the earthquake phenomena. Suppose I am a rural illiterate, but I don't know whether I should get a technology for this. I am getting money from the state government and central government for constructing a house, but we are constructing, I am constructing a Pakka house without any technical inputs from the earthquake point of view, and therefore this house will become more vulnerable in case of earthquake, and it will create a more havoc and casualty will be more if it is not earthquake resistance structures. And therefore from the Kacha house, Pakka house is more vulnerable. On all these aspects, Professor Bapat will educate us, sensitize us, motivate us to capture knowledge and make career. And this discourse is very much important for the faculty members as well as our students. Again, I welcome Dr. Bapat to BC Bhagalpur for your deliberations. And I am requesting all my friends and students to give him a big applause, clapping in respect of Dr. Bapat.
Yes, sir. Now we can start. And I am sharing your slide, sir. Okay, shall I start now? Yes, sir. Okay, अभी आवाज करना पड़ेगा ना मुझे? हाँ ठीक है. We are audible, sir. अच्छा, आज तो मैं पहले शुरुआत जो करूंगा वो हिंदी में करूंगा, अंग्रेजी में नहीं करूंगा। आज हिंदी दिवस है, तो बिहार में तो हिंदी का काफी प्रभाव है, भाषा भी है। तो मैं पहले आप सब लोगों का हिंदी दिवस पे अभिनंदन करता हूं। और अभी हम चालू करेंगे। अब मैं पहली स्लाइड चाहता हूं, आप दिखाइए पहली स्लाइड क्या है। निर्मल कुमार जी के पास मैंने भेजा है। पहली स्लाइड लगा दीजिए, उसमें This है। is your first slide, sir. I am starting from here. अच्छा, ओके, लगाई। साइस्मिक वल्नरेबिलिटी है पहले, उसके आगे भी थोड़ा जाएंगे। तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहते हैं कि जो भूकंप है, जितने भी हमारे यहाँ आपदाएं हैं, भूकंप है या बाढ़ है या और कोई चीज है, तो ये सारे में जो भूकंप है वो बहुत जंटल डिजास्टर है। जंटल मतलब बाकी जो है बाढ़ है कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक चलती रहती है। और बाकी और भी आप देखेंगे, साइक्लोन आता है ईस्ट कोस्ट पे, वो भी 2-4 दिन, 5 दिन, कभी कभी 6 दिन, 8 दिन तक चलता रहता है। मगर जो भूकंप है वो बिहार में, जो आपका इलाका है भागलपुर वाला, वो जोन 4 में है। और जो बिहार का हिस्सा जो नेपाल के साथ सटा हुआ है वो जोन 5 में है। तो भूकंप का जो झटका आता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक चलते रहता है। हाँ, 1 मिनट तक चलता रहता है ज्यादा से ज्यादा। तो इससे हानि कम होती है, और जो भी हानि है वो 1 मिनट में ही हानि पूरी हो जाती है। बाकी जो आपका अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ की हानि बाढ़ के दौरान होती है, बाद में भी आती रहती है, कुछ चीजें बह जाती है तो उसकी। और हमारे यहाँ भी साइक्लोन आता है, उसकी भी हानि काफी दिन तक चलती रहती है। तो भूकंप इज जंटल डिजास्टर। अभी अगले स्लाइड में हम देखेंगे क्या बात है वो। तो भूकंप के बारे में अभी हम जानकारी ले रहे हैं। अगली स्लाइड हम बताएंगे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो निर्मल जी, अगली स्लाइड लगाइए। हेलो, ये देखिए, इसमें अभी हमने, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? Yes, sir. आवाज आ रही है आपकी? Yes, sir, you are audible, sir. Yes. अभी आप इसको Yes, sir. देखेंगे, मेरी स्लाइड जो है वो क्या होगा? जो भी तकलीफ है, 3 से 13 तक। हाँ, तो जो है अलग अलग 14 तो मैं जा रहा हूँ। उसकी कितनी ड्यूरेशन है उसमें हमने दिया है। देखिए वो स्लाइड लगाइए जरा, इसके पहले वाली जो है। तो अभी हम देखेंगे, ये देखिए अर्थक्वेक जो है 1 मिनट तक चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। कभी कभी अखबारों में आता है, न्यूज में आता है कि 2 मिनट तक भूकंप हुआ, 3 मिनट तक भूकंप हुआ है। ये बात वो गलत है। और हम ये कहते हैं कि ये आदमी डरने से ये कहता है। और भूकंप 1 मिनट के बाद हम देखेंगे टोर्नाडो होता है, वो कुछ मिनट या कुछ घंटे तक चलता है। थंडरस्टॉर्म जो हमारे यहाँ पे आते हैं वो भी कुछ घंटे तक चलते हैं। और वो आंधी जो आती है, धूल स्टॉर्म जो हम कहते हैं, वो 1-2 घंटे तक ज्यादा चलता है। और हेल स्टॉर्म जो है, ओले जो पड़ते हैं, वो 1 मिनट से लेके कुछ मिनट तक, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक चलता है। लैंडस्लाइड जो है वो कुछ घंटे से लेके कुछ घंटे तक चलता है। और साइक्लोन जो है वो कुछ दिनों तक चलता है। और फ्लड जो है
वो काफी दिनों तक चलता है या कभी कभी हफ्ते तक चलता है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि ये समझ गए आप लोग कि भूकंप जो है वो एक सौम्य संकट है। अभी देखेंगे कि जो भूकंप की आने की संभावना जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग पद्धतियां हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी पद्धति जो है वो स्टैटिस्टिकल मेथड, उसको ये करते हैं। और हम देखेंगे हाई राइज बिल्डिंग हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुंबई और दिल्ली में है। तो हम अभी आपके साथ जो बात करेंगे उसमें ज्यादा दिल्ली का ज्यादा संदर्भ आएगा। और पटने में भी हमने देखे काफी बिल्डिंग बनी है, 8-8, 10-10 मंजिल की बनी है, और कुछ बनी है, कुछ बन रही है। किंतु इस सारे जगहों पे भूकंप प्रतिरोधक कायदों का या जो उसका आईएस कोड है उसके अनुसार हुआ है ऐसे नहीं कह सकते। जो हम आपको कहेंगे बिहार के जैसे ही आपके बगल में जो बंगाल स्टेट है वहाँ पे सिलीगुड़ी करके जो जगह है, सिलीगुड़ी इज वेरी क्लोज टू जोन 5, दो इट इज नॉट इन क्लोज 5। तो सिलीगुड़ी में 11 मंजिल की बिल्डिंग बनी है। हमने जाके वहां पे देखा था, फोटो खींची थी, बात करी थी। वो बोले हमने सब किया है, सब कुछ नहीं किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसीलिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो काम करते हैं उन्होंने मैग्नीट्यूड या भूकंप होने की संभावना जो है उसके लिए स्टैटिस्टिक का इंतजाम। अगले बार हम देखेंगे कौन सा स्टैटिस्टिक इस्तेमाल किया जाता है। अगली स्लाइड लगाएंगे। जब तक हम देखेंगे इसमें जो हम स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करते रहते हैं वो पाइथागोरियन स्टैटिस्टिक्स होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक, probability of occurrence of an earthquake P is equal to 1 minus e to the power minus lambda t। इसमें P है probability of occurrence of an earthquake, मतलब भूकंप होने की संभावना कितनी है। वो ज्यादा से ज्यादा 1 होती है, कम से कम 0 होती है। और लैम्बडा टी जो है, लैम्बडा इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक। मतलब आपके पास जो लिस्ट होती है हमारे पास भूकंप की, वो 500 साल में, 600 साल में, 1000 साल में, 2000 साल में कितने भूकंप आए और उनकी शक्ति कितनी थी, ये उसमें लिखा रहता है। अगर हम कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं तो मान लो कि जो बिल्डिंग है वो हम चाहते हैं भाई 70 साल तक भागलपुर सेंट टेरेसा स्कूल के अधिकारी द्वारा फीस की मांग को लेकर छात्र के परिजनों ने स्कूल अधिकारी से मिलने गए, मगर स्कूल अधिकारी ने परिजनों से मिलने से इनकार कर दिया। वहीं परिजनों ने आक्रोशित होकर भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग रोड हम आपको जो बता रहे हैं कि हिमालय में सबसे बड़े भूकंप होने की संभावना क्या है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनको विनती करी थी और बोला था कि भाई आप उसको तपास कीजिएगा कि अलग अलग जो जिले हैं Sorry for disturbance, sir. Sorry for disturbance. Actually, after a few minutes, this meeting will end. All participants are requested to kindly rejoin this meeting again with using same link. So all participants are requested to rejoin this meeting, and we will continue this session. Okay, Shall I start talking? We need to rejoin the meeting with the same link, sir. मैं बात करना चालू कर दूं? हाँ जी? Yes, it will stop, sir, now, and then we need to rejoin it again. Shall I stop now talking? Now. Mute कर दूं? मैं म्यूट कर दूं? Okay, sir. Okay, yeah. Shall I start now? Yes. आवाज आ रही है मेरी?